Good morning. Before we start with our today's lecture, एक short video देखेंगे and then we start with our continuation of the theory topic. So I'll just share that. Let me know whether the audio is proper or not. Three, two, one. Yes? Yes, as of now, the countdown is audible. Okay, okay. Happy 2000! On January 1st of 2000, the world almost ended. Well, it did in some places. A nuclear station in Japan sounded an alarm, the Pentagon satellites stopped processing information, and all over the world, people became 100 years older, digitally at least. Sometime in the 80s, computer engineers discovered that software had a drawback. It recorded only the last two digits of the date, so the transition from 1999 to 2000 wouldn't make sense to it. The outcome could be unpredictable, from planes falling from the skies to life support systems failing to prisons releasing criminals. The apocalyptic event was called the year 2000, or Y2K problem. As cult leaders were preaching about the world's end, marketers were promoting survival kits, and ordinary people were building bunkers. Millions of dollars were spent on programmers hoping they could fix the issue. And they did. Most of us didn't notice any chaos. Those countries that decided to ignore the issue didn't suffer any significant damage either. But all the engineering effort used for Y2K wasn't for nothing. The bug had one big benefit. Software testing became very popular. Software testing basics. How QA is done today. To understand how we arrived where we are today, let's travel a few decades back. Historically, testing hadn't been a priority. Probably the only place where it was taken seriously in the old days was NASA. Project Mercury in 1958 signified the beginning of the space race. In its 5 years of existence, Mercury launched America's first satellite and sent Alan Shepard into space. Jerry Weinberg was leading software operations for the project and didn't have the typical attitude to testing. In a sense, he was way ahead of his time. So we formed, as far as I know, the first real professional testing group that had existed. Up to that time, programmers were expected, well, first of all, they were expected to write programs that didn't have flaws in them. Jerry's testing crew set the standard, and the industry caught up, but not in the way it was intended. And so that was picked up by lots and lots of managers all over the world. And they would hire people who they didn't feel were qualified to be programmers, but they could hire them as testers. In the words of a computer science pioneer, Edsger Dijkstra, the industry scaled too quickly. At the dawn of software development back in the 40s and 50s, software was built by those who would end up using it, and on the machines that would run the program. But that was before engineering was commercialized. In the 1960s, IBM introduced System 360, a legendary mainframe computer built specifically to be modular and compatible with any task. The cost and time it took to build were just as legendary. Around 1,000 employees worked on the system for 10 years, and the initial budget of $25 million was raised to $5 billion. Programs took ages to build. Companies hired excessive numbers of engineers to speed up development, but the pool of qualified programmers was limited, and soon they ended up with low-quality, bug-infested software. This was also the reason Y2K happened in the first place. People were still using legacy software developed decades ago by people who were unconcerned about the distant future. Solving the crisis was on the minds of developers and researchers until the 90s. In his famous article, No Silver Bullet, IBM System 360 architect Fred Brooks lamented how the growing complexity of computer hardware was disproportionate to engineering practices. Not only are there no silver bullets now in view, the very nature of software makes it unlikely that there will be any. No inventions that will do for software productivity, reliability,
and simplicity with electronics, transistors, and large-scale integration did for computer hardware, we cannot expect ever to see twofold gains every 2 years. It was like software development had nowhere to grow. Turns out, he was wrong. Agile. In 2001, 17 software development leaders created the Manifesto for Agile Software Development. This new approach was a direct response to the traditional method known as waterfall that migrated from the old manufacturing practices. In waterfall, you work in stages that strictly follow one another, which is intuitive but risky. If, or more correctly when, a tester finds a bug in the code, design, or even product requirements, the project has to start all over again. This also means that the engineering and testing teams don't work closely together. Agile's 12 principles all come down to a few core ideas. Embrace change, stick to the shorter cycle, and collaborate more. Yes, open space offices likely became a trend due to Agile recommendations. Testers are now the required members of the engineering team who maintain the product quality from the very start. Now feedback exchange is instant and bug fixes happen at the time of coding. Also, automated tests are way more widespread. Testing became more than a routine task of sorting through the code. A new process deserved the title of quality assurance, which also covers planning, monitoring, and control. Here's how Agile teams are doing software testing today. Planning is something considered anti-agile. Here's an approximate list of things that should be recorded in a test plan, a document dictating the testing strategy for the product. But Agile test leaders are looking into simpler alternatives. And test plans were one of the things that were really annoying me about Google. They annoyed me at Microsoft too. They've always annoyed me. This is James Whitaker, former engineering director at Google and Microsoft and author of How Google Tests Software. He came up with a hugely popular technique for writing test documentation called the 10-minute test plan. James defined 3 core elements that a test plan needs. First are the attributes. These are the adjectives describing the main purpose of testing. What is testing supposed to check? Then, the components. What are we testing? These are the nouns describing pieces of code or features. Finally, we document capabilities. Here you use verbs to explain what a user should be able to do. And we never built a test plan in 10 minutes, but we did discover the things that are absolutely important in a test plan, and we threw away the rest. Even the minimalistic version of a test plan will be enough to start a second stage, which is writing test cases and test scripts. A test case is a detailed description of the task that would allow you to perform the test and then determine if the program passed or failed. Say your task is to check what happens when a logged user tries to book a hotel room. The test case will have information about the steps you'll need to take, conditions that must be followed before you do the test, and the expected outcome. This would actually be an example of functional testing, a type of test performed when we want to check how the software works in terms of features. There are a few types of tests to know about. Functional testing usually has an input, what to do, and an output, what we should expect. This testing can be done even by people who have minimal knowledge about how the system works from the inside, which is why it's also called black box testing. What else could you test using a black box approach? Usability, for example. You don't have to read code to understand if the system is easy to use. There's also use case testing, when you have to check if the software will be used as intended. This would verify the work of UX designers. Black box testing will also be enough to check the system stability and performance, basically the conditions under which it would or wouldn't crash. But often, you need to test the quality of the code itself and its security, how its smallest parts work and how these parts work together. This is called white box testing, and it's either done by programmers who develop this particular software or test engineers who know how to code. Not all tests need written cases. Sometimes, tests are done sporadically to save time or simply to see what will happen if we improvise. This is called ad hoc testing, like a fire drill. Obviously, this should be done by a human tester because the machine can't improvise like a human. But what can a machine do? The hits and misses of automated testing. Before the Agile Manifesto emerged, test automation was a badly underused technique, but it makes perfect sense in the logic of continuous iterative improvement. You write a test script once and run it simultaneously on as many devices or browsers as you want, as many times as you want, and for as long as you can leave your computer on.
Here's an example of an automated test checking system response to invalid logins. And here are the reports it made. Using it, however, can be challenging. Only highly skilled testers can write test scripts, so project managers have to be smart when distributing testing efforts. While a machine can't be trusted with all tests, in some situations, it's a real lifesaver. In regression testing, for example, regression testing aims to check how the system works after changes. It's ineffective and totally unfair to make people perform dozens of the same tests every time you want to ship an update. Automation testing is also one of the pillars of continuous delivery, the new stage in the evolution of Agile. DevOps practices are also dependent on continuous testing. Embracing the long-term thinking. There's a monumental mechanical clock being built in the San Diablo mountain range of West Texas right now, sponsored by Jeff Bezos and designed by American inventor Danny Hills. The so-called 10,000-year clock will chime every 1,000 years as a symbol of long-term thinking and optimism. While making calculations for the clock, the design team was met with some software limitations. Microsoft Excel didn't recognize the 5-digit number as the date. Among computer scientists, the problem is called the Y10K bug. It's been an issue for many long-term analyses, like the ones concerning nuclear waste. If people living in the Decamillennium will still be using Windows 10, this may cause a great problem. But most likely, people won't have to worry about that. Test automation is the fastest growing area in QA today and a long-term investment for a software project. If we manage to replace most routine testing tasks with machines, we can allocate more resources to making software more user-friendly, or accessible, or simply satisfying. We can also ensure quality in earlier stages and go beyond classic QA towards more analytical approaches, like quality engineering. If there's anything we know about testing, is that the progress matters, not perfection. What shape will software testing take in the coming years? Is complete automation even possible? Let us know your thoughts in the comments below. Okay, so that was something basic about testing. अब देखो कि हम लोग कुछ पॉइंट्स पे जो बात कर रहे थे, लाइक जो कंपनीज है वो एक लिमिट के बाद में कहीं पे सपोर्ट प्रोवाइड करना कोई सॉफ्टवेयर्स के लिए बंद कर देते हैं. स्पेशली इफ यू नोटिस वी हैव विंडोज एग्जांपल. सो जो भी पुराने सिस्टम्स थे 2000 के पहले वाले, जैसे मैं लास्ट टाइम आपको बता रहा था कि विंडोज एक्सपी पे अभी ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है कंपेयर टू विंडोज 7 पे जितना मिल रहा है. एंड मैक्सिमम आपको अपडेट्स और जो भी कुछ मिलेगा वो सब आपको मिलेगा ऑन विंडोज 8.1 एंड विंडोज 10. 8 के ऊपर तो हम लोगों को ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है बिकॉज नो वन इज़ यूजिंग विंडोज 8. Most of people are working with Windows 8.1 just because the problem they started with Windows 8. और आप देखो कि कभी कभी when we talk about a testing, so आप जब एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहे हो, so that too also creates a problem. Like Windows 8 में they started to make their software work like some other softwares. Like विंडोज 8 में प्रॉब्लम क्या था कि जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं हम लोग के, तो उसमें दे ओनली ऑन द स्टार्ट व्हेन वी बूट अ सिस्टम in Linux, it only starts those application in a background which are necessary to start your operating system, not everything. बट विंडोज में क्या होता है कि जो भी एप्लीकेशंस आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है वो सारे स्टार्ट होंगे एंड एट द एंड फिर जाके वो आपको क्लाइंट या यूजर्स के लिए विंडो प्रोवाइड करेगा वेयर यू कैन परफॉर्म योर टास्क. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कंपेयर टू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. आप देखो कि धीरे धीरे आप विंडोज जितना ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करोगे ना, उसका स्पीड जो है वो थोड़ा थोड़ा स्लो होते जाता है, स्टार्टअप स्पीड. द ओनली रीज़न बीइंग कि आप जब मल्टीपल एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स यू इंस्टॉल्ड ऑन विंडोज सिस्टम, तो वो बैकग्राउंड में सबको इनिशियलाइज करने के बाद में इट हैंड ओवर कंट्रोल्स टू अ यूजर. दैट इज द प्रॉब्लमेटिक थिंग.
है ना। सो स्टार्टअप में टाइम लग रहा है। तो अब विंडोज 8 में क्या होता है, विंडोज 8 में दे स्टार्टेड फॉलोइंग अ हाइबरनेट मोड। ठीक है, मतलब वी कैन से, अगर बहुत सिंपल अगर मैं आपको बताऊं कि आधे एप्लीकेशंस चालू कर दिए उसने, जो जैसे लिनक्स का पैटर्न फॉलो किया विंडोज में। सो द नेसेसरी एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट योर ऑपरेटिंग सिस्टम, वो उन्होंने चालू किया विंडोज 8 में। एंड उसके बाद में आपको कंट्रोल प्रोवाइड किया, मतलब डेस्कटॉप आपको दिखने लगा, माउस आपका वर्क होने लगा। सो एज सुन एज वी प्रोवाइड अ डेस्कटॉप टू यूजर, user will click on a folder icon or browse or any xyz things, मतलब यूजर के साइड से कमांड जाएगा। और विंडोज 8 जो अभी हाफ वे खुला हुआ है, मतलब खाली नेसेसरी जो एप्लीकेशंस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड थे उतने ही एप्लीकेशन उसने स्टार्ट किए। बाकी के जो सॉफ्टवेयर्स है वो अभी भी बैकग्राउंड में काम कर रहा है। तो अब क्या हो रहा है विंडोज 8 में कि ये जो प्रॉब्लम था उसने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने का स्पीड जो कम करने का ट्राई किया, एंड उसके लिए जो उन्होंने टेक्निक यूज किया, दैट टेक्निक प्रूव्ड टू बी अ डिजास्टर फॉर विंडोज 8। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि विंडोज 8 के मोबाइल्स भी फेल हो रहे हैं और उनके लैपटॉप वर्जन्स भी फेल हो गए, क्योंकि बैकग्राउंड में आपके टास्क चल रहे हैं। ठीक है, अब सपोज अगर 30 एप्लीकेशंस मेरे लैपटॉप में है, उसमें से उसने जस्ट 10 एप्लीकेशंस जो है वो इनिशियलाइज कर दिए विच आर नेसेसरी टू स्टार्ट माय ऑपरेटिंग सिस्टम। या मैंने स्पेसिफिकली बोला था, या वी डू हैव फ्यू एप्लीकेशंस जो every time you boot your computer and during booting only this application gets initialized। so वो चालू हो गए, आपको डेस्कटॉप का कंट्रोल मिल गया। now when you try to put some command like ब्राउजर ओपन किया, कोई फाइल ओपन किए, पेन ड्राइव अटैच कर दिया आपने, अब क्या हो रहा है बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशंस ऑन स्टार्टअप चालू नहीं हुए वो एप्लीकेशंस चालू हो रहा है, मतलब बैकग्राउंड में देर आर द थिंग्स आर ऑलरेडी गोइंग ऑन। एंड अगेन इन फोरग्राउंड, मतलब इन फ्रंट साइड, यूजर इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सम कमांड्स। तो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के कमांड्स जो है वो क्लैश हो गए। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम शुड गिव प्रायोरिटी टू विच कमांड मोर, टू यूजर कमांड या फिर बैकग्राउंड में जो कमांड्स चल रहे हैं उसको। और ये कंफ्यूजन में क्या हो गया कि आपका सिस्टम जो है वो बैकग्राउंड के टास्क कंप्लीट करने के साथ में यूजर के कुछ टास्क कर रहा है, और एल्स यूजर के टास्क ही नहीं कर रहा है वो। तो दैट स्टार्टेड क्रिएटिंग इवन अ बिगर प्रॉब्लम, रिमेंबर। और एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आ गया कि जहाँ पे व्हेन वी वर यूजिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज एक्सपी एंड 7, तो उसमें जितना टाइम लग रहा था ना उससे भी ज्यादा टाइम अभी यहाँ पे लगने लगा। ठीक है, सो it used to take like sometimes 15, 20, 25 minutes, and at the end frustrate होके users used to just stop that part। तो ये एक बहुत बड़ा एक फेलियर प्रूव होता है, एंड वो नहीं होना चाहिए। एंड दैट्स वाई हम लोग अगर देखेंगे सो मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग अवॉइड करते हैं विंडोज 8 यूज करने के लिए। अब यहाँ पे हम लोगों को मेन जो पॉइंट समझ में आ रहा है वो क्या है कि आप अगर कोई सिस्टम्स को खुद के साथ कंपेयर कर रहे हो, आप अपने सिस्टम को कोई दूसरे सिस्टम के कंपैरिजन में ला रहे हो, देन वी ऑल्सो सपोज टू नो कि वो सिस्टम और हम लोग के सिस्टम में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो कहाँ पे सेम है, अलग है, कहीं पे कोई चेंजेस अगर हुए हैं, बिकॉज ऑल द सिस्टम्स आर नॉट सेम। तो अगर मैं कहीं पे कोई एक सिस्टम अगर अप्लाई कर दूंगा और वो सेम सिस्टम अगर मेरे सॉफ्टवेयर पे अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है,
जैसे जो लिनक्स का सिस्टम था, लिनक्स का जो पैटर्न था, वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, वो सेम पैटर्न ऐड करने का ट्राई किया, एंड फॉर दैट रीजन यू स्टार्टेड योर ऑपरेटिंग सिस्टम जो बूट हो रहा था, इट स्टार्टेड बूटिंग इन अ हाइबरनेट मोड। तो हाइबरनेट मोड का मतलब क्या रहता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट होने के लिए जितना चीज़ें ज़रूरी है उतना ही वो ऐड करेगा, बट आफ्टरवर्ड्स तो वो बाकी की चीज़ें कर ही रहा है ना। गेटिंग, स्टार्ट में नहीं कर रहा है ठीक है, लेकिन बाद में तो करेगा ही वो। तो आपने कोई टास्क जो पोस्टपोन किया था कि जिससे यूज़र को डेस्कटॉप जल्दी मिल जाए, तो आपने उसको प्रॉपर टेस्ट नहीं किया, एंड टेस्ट फेल होने की वजह से माइक्रोसॉफ्ट का एक पूरा बिजनेस स्पॉइल हो गया। Remember, Windows 8 was the biggest hit in a market at that point of time. आप आपने वो एक दो मूवीज में भी देखा रहेगा, आई थिंक वो कौन सा चेन्नई एक्सप्रेस करके था, उसमें आपने देखा रहेगा शाहरुख खान यूज टू जस्ट एडवर्टाइज दैट नोकिया का कोई एक फोन, तो दैट वाज द विंडोज वर्जन। रिमेंबर, इट वाज दैट पॉपुलर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि बहुत सारे लोग यूज कर रहे थे, आप में से भी किसी ने यूज किया रहेगा विंडोज फोन। लेकिन दिस इज द ओनली रीजन। सो आप देखो, क्वालिटी अश्योरेंस प्लेज द सिग्निफिकेंट रोल। और आप जब अगर कहीं पे फेल हो रहे हो ना, तो आपके कॉम्पिटिटर्स उतना ही ज्यादा ग्राउंड कैप्चर कर रहे हैं, मतलब उसके बाद में आपको वापस मार्केट में आने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे विंडोज 8 मोबाइल्स फेल होने के बाद में एंड्रॉयड फोन्स और ज़्यादा पॉपुलर हो गए। पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग मोर ऑन एंड्रॉयड फोन्स कंपेयर टू विंडोज। आज आपको किसी के भी पास विंडोज फोन नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको हर किसी के पास एंड्रॉयड फोन आज भी मिलेगा। देन और एक प्रॉब्लम हो गया कि विंडोज 8 से जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था कि विंडोज 7 एंड एक्सपी तक तो इट यूज टू टेक 5 to 10 minutes टू स्टार्ट माई कंप्यूटर, लेकिन विंडोज 8 हाइबरनेट मोड पे चालू कर रहा है, 2 मिनट के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप विजिबल हो गया। यूजर कमांड्स दे रहे तो कमांड्स पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड में आपके अभी भी कोई ना कोई टास्क एग्जीक्यूशन चल रहा है और यूजर के साइड से कोई दूसरे कमांड्स आ रहे हैं, दोनों क्लैश होने लगे। प्रॉब्लम गॉट इवन वर्स, इवन बिगर। तो विंडोज एक्सपी और 7 से भी आपका परफॉर्मेंस वर्स्ट हो गया। पीपल नोटिस दिस। मेरा प्रोफेशनल ऑफिस में अगर मैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ और वो अगर इतना प्रॉब्लम देगा, आई विल सिंपली जस्ट स्विच टू डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, और वही लोगों ने किया। आप देखो, बहुत सारे कॉल सेंटर्स, बहुत सारे ऑफिसेज जो है, दे स्विच टू उबुंटू और लिनक्स का कोई भी एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइसेंस मिल रहा है, दैट इज जीपीएल लाइसेंस मिल रहा है, जनरल पब्लिक लाइसेंस। सो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, बहुत सारे ऑफिसेज में दे स्विच्ड ओवर टू दिस। कॉलेजेस में उन्होंने स्विच नहीं किया, दे स्टेड विद द ओल्डर वर्जन और एन अपडेटेड वर्जन। द ओनली रीजन बीइंग कि वी यूज टू परफॉर्म मल्टीपल प्रैक्टिकल्स, और हम लोग के यहाँ पे जो कॉमर्स स्टूडेंट्स भी होता है, तो वो कोई एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, दैट इज द बिग थिंग। अब उसको अगर मैं बोलूंगा कि आपको नया ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके ऊपर वापस वो सेम सॉफ्टवेयर अगर ट्राई करना है, which might be functioning in a different way, not the same way how it is provided in the textbook, so that will create a problem। तो इसके लिए कॉलेजेस में आपको वो चेंजेस नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे ये चेंजेस बहुत विजिबल है। नेक्स्ट थिंग, ये सब होने के बाद में अब आपका वापस सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस में वन थिंग इज मिस्ड, दैट इज एसएमबी ब्लॉक और एसएमबी पोर्ट वाज ओपन। और ये जो पोर्ट ओपन था ना, ये आप देखो कि दिस वाज ओपन फॉर लाइक फ्रॉम विंडोज एक्सपी से विंडोज 10 तक ये पोर्ट ओपन था, ठीक है। और फाइनली जब हम लोग
विंडोज 10 में आया तब जाके ये एसएमबी नाम का बैकडोर में एक पोर्ट उन्होंने क्लोज किया। ये स्टार्टिंग से ओपन था और विंडोज को पता था, और यूएस का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने इसके लिए एक टूल बना के रखा था कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई कंट्री के साथ वॉर लाइक सिचुएशन अगर होगा, सो दे विल बी यूजिंग दिस टूल, जिससे वो जो दूसरे कंट्रीज के सर्वर्स है उसमें एंट्री करके उनके सर्वर्स को थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक कर देंगे या लॉक कर देंगे, जिससे या फिर दे कैन गेट द एक्सेस ऑफ देयर डेटा, जिससे उनका स्ट्रेटेजीज, उनके टेक्टिक्स, उनके टेक्निक्स उनको इजीली पता चल सके। अब ये जो है ये किसी अंडरग्राउंड हैकर्स के हाथ में आ गया एंड दे अटेम्प्टेड एन अटैक विच इज कॉल्ड एज रैंसमवेयर अटैक। रैंसम मतलब आपका कंप्यूटर लॉक कर दिया एंड नाउ दे आर आस्किंग फॉर अ रैंसम मनी, रैंसम अमाउंट, and that is in form of Bitcoin. तो अब that creates again a havoc kind of a situation. आपने देखा रहेगा न्यूज में और वो सब में बहुत चल रहा था, ये कोई ज्यादा पुराना इशू नहीं है, मैक्स 4 years कुछ हुए रहेंगे, 3-4 years. सो दैट टाइम दिस रैंसमवेयर अटैक हैपेंड, और वो टाइम पे हम लोग को पता चला कि विंडोज एक्सपी से जो ओएस थे उसमें एक बैकडोर एसएमबी पोर्ट ओपन था, और वो उन्होंने फिक्स नहीं किया था, और वो फिक्स किस में किया, विंडोज 10 में। सो विंडोज 10 जब लेटेस्ट आया वो टाइम पे सिर्फ विंडोज 10 छोड़ के बाकी के सारे जो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे उसके ऊपर रैंसमवेयर अटैक हुआ, उनके डेटा लॉक हो गए। नाउ इमेजिन कि इफ आई एम परचेसिंग अ लाइसेंस सॉफ्टवेयर और उसके बाद में भी अगर ऐसे लूपहोल्स कोई सालों तक है और हम लोगों को पता नहीं है, और आप अपडेट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, सो आप अपडेट सिर्फ विंडोज 10 पे प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे एसएमबी पोर्ट आपने ब्लॉक कर दिया, लेकिन बाकी 3 अगर मेरे पास लाइसेंस्ड वर्जन है तो भी आपने उस पर अपडेट प्रोवाइड करके एसएमबी पोर्ट ब्लॉक नहीं किया, एंड एज अ रिजल्ट जब रैंसमवेयर अटैक होता है तो विंडोज एक्सपी 7 और 8.1 जो यूज कर रहे थे वो तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो लॉक हो गए। अब मेरा कंप्यूटर जो हॉस्पिटल में काम कर रहा है, कोई दूसरे ऑफिस में काम कर रहा है, नाउ उसके ऊपर काफ़ी काम के डेटा है, एंड दैट कंप्यूटर इज लॉक्ड। अगर कंप्यूटर लॉक हो गया मतलब कभी अनलॉक होगा मुझे पता नहीं है। अब समटाइम्स पीपल माइट पे दैट रैंसम अमाउंट, पीपल माइट नॉट। इन बोथ दिस कंडीशन तकलीफ तो हुआ ना, मतलब आपने विंडोज 10 में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया एट टाइम व्हेन यू आर अवेयर कि ये कोई एक पोर्ट जो है वो ओपन है, लेकिन वो सेम अपडेट आपको भेजना चाहिए था विंडोज 8.1 में, विंडोज 7 में और विंडोज एक्सपी में, जो विंडोज ने नहीं किया, एंड एज अ रिजल्ट उसका पॉपुलैरिटी जो है वो और कम होते गया। सो आप देखो कि दिस आर फ्यू इंस्टेंसेस जब कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई कंपनी अपने सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने कहीं पे सॉल्व कर रहा है, कोई दूसरे वर्जन में वो सॉल्व नहीं कर रहा है, तो फॉरवर्ड ट्रैकिंग जो हम लोगों ने एसक्यूए में डिस्कस किया था, वो फॉरवर्ड ट्रैकिंग में विंडोज 10 ने अपना ये एसएमबी पोर्ट जो ओपन था उसको ब्लॉक कर दिया। They have rectified that problem, but they have not rectified in a backtracking manner, मतलब Windows XP 7 और 8.1 में, and hence a result उसके ऊपर अटैक हुआ, लोगों का ट्रस्ट कम हो गया, people again switch to other operating system. सो थोड़े बहुत जो स्टार्टिंग में हाइबरनेशन का इशू आ रहा था विंडोज 8 में तो भी जो स्विच नहीं हुए थे, नाउ दे स्विच्ड। ठीक है, सो मतलब यू आर ओनली प्रोवाइडिंग अ बिगर मार्केट फॉर योर अपोनेंट्स बाय नॉट following software quality assurance technique in a proper manner. Okay, so that's one thing. Now next हम लोग के पास और एक चीज है जिसमें हम लोग GUI टेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब GUI टेस्टिंग हाउ थिंग वर्क्स, ओके, एक बार समझते हैं हम लोग। सो GUI टेस्टिंग में हम लोग क्या बात करेंगे, what we mean by GUI, graphical user interface.
जब अगर हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात कर रहे हैं तो वो GUI क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितना बेटर होना चाहिए इन शॉर्ट, और इट शुड बी ए समथिंग लाइक अ प्रॉपर और इट शुड नॉट बी अ प्रॉपर वन, ये कैसे पता चलेगा? सो इफ वी हैव सम एग्जांपल्स हम लोग समझ सकते हैं. सो आई विल जस्ट शेयर. So we'll discuss GUI wala testing now. So as you can see in this one, okay, I'll just reshare it. Huh. So as you can see in this one, why do we require GUI testing? उसका पर्पस क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होता है? So first thing, as you can see, there are two types of interfaces for computer application. एक कमांड लाइन होता है, मतलब डायरेक्टली हम लोगों को जो कमांड प्रॉम्प्ट मिलता है वैसा होगा, और दूसरा होगा GUI, graphical user interface. So if we are using something like this, like true false, रेडियो buttons, ये सब, तो ये क्या हो गया, ये आपका interface हो गया. So we are not going to write any commands here. आपका without writing a command आपका काम. Now when we want GUI testing, अब ये जो भी कुछ अगर GUI हम लोग बना रहे हैं तो उसको टेस्ट करना भी जरूरी है. So if you notice here, we have given something like GUI testing in a software testing type. यहाँ पे क्या बोला है? First of all, the purpose of GUI testing is to ensure the functionality of a software application works as per the specifications by checking screens, controls, menu button, जो भी कुछ है. GUI is what users sees. Say if you visit this website, you will see a home page. बराबर है. अब उसके साथ में user cannot see a source code. The interface is visible to end user, especially in focus on the design structure, images that they are working properly or not. बस इतना ही पता चलेगा. अब आप बहुत सारे ऐसे कोई सॉफ्टवेयर जब यूज करते हैं ना तो उस पे आपको ऐसा कुछ मिलेगा. देखो, लाइक हियर वी हैव अ प्रैक्टिस, सर्च फॉर योर फेवरेट कोर्स. अब यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट GUI दिया है, यू क्लिक ऑन इट और आपका काम. ये आपका GUI का बेनिफिट हो गया. इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मैं आपको बोलूंगा कि यू सपोज टू राइट अ कमांड टू एक्सेस एनी सच कोर्स या ओपन दिस वेबसाइट एज वेल, टू ओपन योर ब्राउजर एज वेल, सो दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट. सो सबसे पहले नीड ऑफ GUI आएगा. व्हाई डू वी नीड GUI? सो टू गेट द आंसर हम लोग को क्या मिलेगा? चेक ऑल द GUI एलिमेंट्स टू मेक द थिंग सिंपल. ओनली टेक्निकल नहीं, नॉन टेक्निकल पीपल कैन ऑल्सो वर्क विथ योर सॉफ्टवेयर. सो इसके लिए हम लोग को क्या लगेगा? GUI लगेगा. अब GUI टेस्टिंग में क्या चीजें हम लोग फोकस करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फोकस ऑन समथिंग लाइक साइज, पोजीशन, विड्थ, लेंथ, है ना, एक्सेप्टेंस ऑफ कैरेक्टर्स और नंबर्स. यू मस्ट बी एबल टू प्रोवाइड इनपुट्स टू इनपुट फील्ड्स. ये सब हम लोग देखेंगे. मतलब इफ यू आर पुटिंग समथिंग, सो वो कितना प्रॉपर वर्क कर रहा है. Just 1 minute. So if we are working with something, how proper it works or how good it looks to the user, ये हम लोगों को देखना है. Because अगर वो user or if they are not comfortable with the look and feel of this, so again आपको उसको modify करना पड़ेगा.
अब देखो, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है, आपको चीजों को सिंपल रखना है। और सिंपल रखने का मतलब है कि आप होगा उतना सिंपल जीयूआई प्रोवाइड करो जिसको देख के यूजर्स इजीली वर्क कर सके। नाउ we have few softwares where providing a testing is very much important. After putting a GUI, still we need a training to use those softwares. Like we have a SAP software, so it comes with GUI, but still it not easy to use those softwares because we have so many functions available. We can take example of Photoshop. We have this software available, but still we need a testing, a training to use that software. So as you can see, check your executed intended functionality of an application using GUI. जो functions हम लोगों ने provide किए थे GUI के through, whether those functions are working fine or properly or not. That's first thing. Check error messages are displayed correctly or not. Exception handling we are talking about. Clear demarcation of different sections on the screen. जैसे if we are working with MS Word, there are clear demarcation, क्योंकि यहाँ पे आपका ये मेन्यू पार्ट है, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट पार्ट है, उसके ऊपर देर आर सम स्केल विच इज गिवन जहाँ पे आपको कोई दूसरे इंफॉर्मेशन मिलेंगे. Then font used in an application is readable or not. Then alignment of the text is proper or not. ये सारे देखते हैं. Colors of the font and warning messages. अब देखो warning messages है, तो अगर ये warning है so it should be highlighted one. तो वो highlight हो रहा है कि नहीं. Then check the image have a good clarity. अगर कोई एक image ऐड किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका कोई लेना देना ही नहीं है हम लोग के एप्लीकेशन के साथ में. Check that the image are properly aligned. Check the position of GUI element for different screen resolution. ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जो कुछ पॉइंट्स या कुछ चीज़ें अगर बनाया है, इट्स वर्किंग फाइन हियर, लेकिन इट माइट नॉट वर्क वेल ऑन डिफरेंट सिस्टम्स, सो वो आपको यहाँ पे देखना है. ओके, सो दैट फर्स्ट थिंग. देन GUI टेस्टिंग टेक्निक में आपको क्या बोला है, मैनुअल टेस्टिंग होगा. Now, manual testing में क्या होगा? As you can see, we have a tester. Sorry. So under this approach, a graphical screens are checked manually by tester in conformance with the requirements stated in the business requirement document. Now यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या करेंगे, टेस्टर विल चेक ऑल द ऑपरेशंस. तो ये आपका GUI हो गया. सो आप देखो आज के टाइम पे मुझे यहाँ पे कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है. नॉर्मली आपने C++ या C या जावा में कैलकुलेटर कोड लिखा रहेगा. वी राइट अ फंक्शंस एंड उसके बाद में आउटपुट स्क्रीन पे इट आस्क टू एंटर यू फर्स्ट नंबर देन सेकेंड नंबर, है ना, और उसके बेस के ऊपर उसकी पे वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस करके बताएगा. अब यहाँ पे आपको ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. The buttons are given here. I can simply click on this button, वो same number यहाँ पे print होगा. I'll click on some operations here, वो same यहाँ पे आएगा और finally equal to करूँगा तो आंसर यहाँ पे बता देगा. बराबर है. Now, next if you notice, record and replay. Record and replay का मतलब क्या है? We have some softwares, right, for automation testing, जिसको हम लोग automation testing बोलते हैं. तो उसमें क्या होता है बेसिकली, आप ये जो भी टेस्ट कर रहे हो, it will just record those tests and it keep repeating those tests. So यहाँ पे जैसे हम लोग को क्या बोला है, we have this calculator test, I'll just enter this number. ये मैंने रिकॉर्ड किया है यूजिंग ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल. हम लोगों ने वो सिलेनियम आईडी देखा था, ठीक है, सिलेनियम. दिस इज द रिकॉर्डिंग टूल. सो ये सिलेनियम आईडी मैं यूज करूंगा. आई विल रिकॉर्ड दिस एक्टिविटीज हियर और उसके बाद में मैं वापस यहाँ पे जाऊंगा. आई विल ओपन द सेम एप्लीकेशन, आई विल प्ले बैक दिस. अब इसको मैं ज़्यादा स्पीड पे भी प्लेबैक कर सकता हूँ.
एंड इसके मल्टीपल कॉपीज बना के भी मैं प्लेबैक कर सकता हूँ. फॉर सपोज मैंने इसके 4 कॉपीज बनाए या 40 कॉपीज बनाए, और अभी 40 अलग अलग मशीन से अगर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, अगर ये नेटवर्क में काम करेगा, तो इंडिविजुअल कंप्यूटर पे अगर काम कर रहा है तो फिर मुझे इसके मल्टीपल कॉपीज बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक इंडिविजुअल कंप्यूटर पे एट अ टाइम एक ही कैलकुलेटर वर्क होना है. तो वो टाइम पे आई जस्ट कीप ऑन परफॉर्मिंग सम और दी अदर फंक्शन. स्टार्ट एक बार मैं रिकॉर्ड कर लूंगा और उसको फिर प्लेबैक में मैं कंटिन्यूस चलाते रहूंगा. सो इससे मुझे क्या पता चलेगा, परफॉर्मेंस ऑफ दिस कैलकुलेटर व्हेन पीपल कंटिन्यूअसली यूज इट फॉर वन और दी डिफरेंट फंक्शंस. देखो, स्टार्ट में आपने मैनुअल टेस्ट किया. नाउ एज वी नो विंडोज 8 मैनुअल टेस्ट हो गया, लेकिन ये जो प्लेबैक वाला टेस्ट है ना, वो प्रॉपर नहीं हुआ उनका, एंड हेंस दिस इज फेल्ड. सो फॉर दैट रीजन दिस प्लेबैक टेस्ट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. याद रखो. नाउ सो मॉडल बेस्ड टेस्टिंग में क्या होगा, GUI बेस्ड हम लोग को टेस्ट कर रहे हैं. सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकेंड नंबर, देन कोई एक साइन और एक्सपेक्टेड आउटपुट. ये आपका मॉडल बेस्ड टेस्ट हो गया. नाउ यहाँ पे आपको क्या दिया है, मॉडल बेस्ड इज अ ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम्स बिहेवियर. जैसे हम लोग टेस्ट केस टेबल बनाते हैं. इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट द सिस्टम बिहेवियर. मॉडल्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ द एफिशिएंट टेस्ट केस यूजिंग द सिस्टम रिक्वायरमेंट. एंड क्या क्या आएगा, बिल्ड द मॉडल, determine the input for the model, calculate the expected output, run test, compare the actual output and expected output. Remember ये हम लोगों के टेस्ट केस टेबल्स ही है जो हम लोग स्टार्टिंग में बनाते हैं एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग. और उसके आगे क्या होगा, डिसीजन टेबल चलेगा, है ना. तो यहाँ पे आपको चार्ट वे में हम लोग सर्टेन चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं. Like chart depicts the state of the system and check the state after input. Then decision table आएगा. We all know about decision table. Then model based testing is also an evolving one for generating test cases. So remember model based test, if we are very clear about what is the actual model, how we are going to work with it, what are the actual business requirement, how it should behave under what situation. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे, the main advantage compared to the above two method is that it can determine the undesirable state that your GUI can attain. मतलब there might be a possibility of different things. जहाँ पे आप अगर देखेंगे तो अंडर सम सर्कमस्टेंसेस आपका सिस्टम बिहेवियर जो है वो फेल हो सकता है, चेंज हो सकता है. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हाउ थिंग वर्क्स, वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं. सो आपको यहाँ पे जैसे दिया है, देखो, फॉलोइंग आर द ओपन सोर्स टूल्स अवेलेबल टू कंडक्ट ऑटोमेटेड यूजर इंटरफेस टेस्ट. सो वी हैव मल्टीपल सच टूल्स अवेलेबल. AutoHotkey, Selenium मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, रोबोट फ्रेमवर्क है, वाटर है, देन डोजो टूल किट है ना. सो यहाँ पे देखो, ये अपाचे जो है ना, ये आपका फ्री वाला हम लोग मोस्टली यूज कर रहे हैं. सो इसके लिए सिलेनियम बहुत ज्यादा पॉपुलर है. एंड समटाइम्स AutoHotkey और ये बाकी के जो है रोबोट फ्रेमवर्क, ये भी आपको ज्यादा कहीं ना कहीं मिलेगा. ओके, सो विल टेक वन एग्जांपल ऑफ दिस रोबोट फ्रेमवर्क एज वेल, कैसे वर्कआउट होता है. सो जिससे अगर GUI टेस्ट अगर करना है तो वो चीजें कैसे वर्कआउट होंगे वो आपको पता चलेगा. So examples of GUI test क्या दिया है, test the size and position, height, test of error messages, different sections on the screen कैसे दिख रहा है, readable है या नहीं है, testing the screen in different resolutions, like this is my resolution. तो मेरे पास HD screens भी हो सकते हैं, मोबाइल screens भी हो सकता है. तो वो टाइम पे ये कैसे वर्कआउट होगा. टेक्स्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर कहाँ पे दिखना चाहिए, कोई आइकन के बाजू में कुछ चीज़ें विजिबल होनी चाहिए. कहीं पे हम लोग के लॉगिन एंड सपोज यूजर नेम एंड पासवर्ड, वो दोनों एक के बाजू में एक या एक के नीचे एक ही दिखने चाहिए. कलर ऑफ द फॉन्ट्स, एरर मैसेजिंग, वार्निंग मैसेजेस, ये अलग से हाईलाइट होने चाहिए.
इमेज अलाइनमेंट, देन याद रखो टेस्टिंग में स्पेलिंग चेकिंग भी आता है. सो आपको GUI में जो विजिबल है उस पर कहीं पे रॉन्ग कुछ स्पेलिंग्स तो नहीं लिखे, बिकॉज रॉन्ग स्पेलिंग का मतलब होगा कि वो कोई वर्ड जो है इसका मीनिंग भी चेंज हो सकता है ना. अब यूजर माइट गेट फ्रस्ट्रेटेड वाइल यूजिंग योर इंटरफेसेस, सो वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए. मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा. देन टेस्टिंग वेदर द इंटरफेस इज अट्रैक्टिव और नॉट. स्क्रोल बार्स अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द पेज, इफ रिक्वायर्ड तो ही प्रोवाइड करो, अननेसेसरीली एक्टिव करके मत रखो. टेस्टिंग ऑफ द डिसेबल्ड फील्ड्स, मतलब आपने देखा है कि हम लोग कोई साइन अप फॉर्म या कुछ फिल कर रहा है, तो जब तक आप सारे डिटेल्स फिल नहीं कर देते, सबमिट बटन इज डिसेबल्ड. सो आपको ये वेरीफाई करना है कि आफ्टर अ प्रॉपर वैलिडेशन, फॉर्म वैलिडेशन वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि जहाँ पे मोबाइल नंबर डालना था वहाँ पे 10 डिजिट्स ही डाले, ईमेल आईडी एंटर करना था वहाँ पे कुछ टेक्स्ट @ देन लास्ट में वापस .com.org कोई एक डोमेन एंटर किया है. और वैसे सारे फील्ड्स अगर प्रॉपरली वैलिडेट हुए, वैलिडेशन में वेरिफिकेशन नहीं होता है. फॉर्म वैलिडेशन का मतलब होगा इफ आई आस्क यू टू एंटर मोबाइल नंबर, तो आपको वहाँ पे 10 डिजिट्स एंटर करने, नॉट अ कैरेक्टर और एनी स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड. Numbers count should not be greater than or less than 10. It has to be equal to 10. Now, if I enter 1, 2, 3, 4, 5, validation, form validation will be cleared here. Form validation हम लोग HTML में लिखते हैं, बराबर है, मतलब यूजर एंड पे, ब्राउजर एंड पे होता है. और वेरिफिकेशन जो होगा वो सर्वर साइड से होगा, मतलब जो आपने फॉर्म साइन अप फॉर्म फिल करने के टाइम पे द मोबाइल नंबर व्हाट यू हैव एंटर्ड उसके ऊपर OTP या एक्टिवेशन लिंक सेंड होगा. सो अब डिसेबल फील्ड्स का मतलब है during a sign up or during some some operations which are performed from the user side. तो अगर सबमिट बटन तब तक एक्टिव नहीं होना चाहिए जब तक आपका फॉर्म वैलिडेशन करेक्ट नहीं होता है. इमेज साइज, हेडिंग्स, ये सब तो सिंपल है. सो यहाँ पे आपको वही दिया है, टेस्ट यूजर ब्राउजर UI टेस्ट है आपके पास. सो यहाँ पे आपको सोर्स फील्ड दिए हुए है. अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये फिनिश जो है ये हिडन है. तो ये एक्टिवेट कब होगा, जब आप सारे डिटेल्स प्रॉपरली यहाँ पे फिल कर देंगे. सो यहाँ पे जो भी डिटेल्स अगर दिए हुए है टिल द पॉइंट वी डोंट फिनिश अप पुटिंग दिस डिटेल करेक्टली, ये हिडन फील्ड शुड नॉट बी एक्सेसिबल. Same way here also this hidden field should not be accessible. When we click on some default things तभी ये यहाँ पे एक्टिवेट होना चाहिए या ब्राउज फील्ड एक्टिवेट होना चाहिए. So that is also a part of GUI test. So यहाँ पे आपको वही steps दिए है कि the above screen what steps we will be following to test the hidden fields here. तो क्या आएगा, वेरीफाइड टेक्स्ट बॉक्स लेबल, देन पैकेज वाला, देन ब्राउज वाला, सोर्स फोल्डर वाला, वेरीफाई ब्राउज, देन नेक्स्ट पैकेज नेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो सेम स्टेप्स यहाँ पे आपको दिए है, जब जाके कब जाके आपका हिडन फील्ड जो है वो विजिबल होगा. एंड how we are going to deal with it. Then next we have that is the regression test. So regression test, as we all know, keep on testing for an issue which might arise after changes which might have happened in one of your module or sub module of your software. तो जैसे हम लोगों ने कोई एक सब मॉड्यूल में we have made some changes and those changes are basically with respect to what we say कि हम लोगों ने coding में changes किया. So if some changes might happen in a coding part, then it's very much required to test other sub modules or a module which are dependent on this module, because coding में change करने का मतलब है integration might differ. So whether still do we have that smooth integration, still the data is communicating properly there or not, ये सारे points पे हम लोग check करेंगे. Then GUI testing tools आपको यहाँ पे एक दिया है, एक Ranorex है,
ठीक है। देन सिलेनियम, QTP, कुकुम्बर है। तो अगर मैं यहाँ पे एक एक करके अगर हम लोग सिर्फ अगर थोड़े कुछ एग्जाम्पल्स देखें, सो वी हैव फर्स्ट दिस वन, देन ये है और ये है। सिलेनियम तो मैंने बता दिया था। सो यू सपोज टू ट्राई एनी वन ऑफ दिस, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं इसका एक एग्जाम्पल जो है ना वो आपको देखना है। सो जैसे यहाँ पे दिया, देखो ट्रायल डाउनलोड करेंगे, आप एंटर करेंगे और आपका जो भी GUI है उसके लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ये रिकॉर्ड एंड रन वाला टेस्ट है। तो मतलब जैसा सिलेनियम वर्क कर रहा है ना वैसा ही ये भी वर्क कर रहा है। देन सेम वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुकुम्बर टेस्ट ट्यूटोरियल, व्हाट शुड आई नो, नथिंग, एब्सोल्यूट बिगिनर ट्रेनिंग होगा ऑटोमेशन के लिए। ये रूबी और जावा पे चल रहा है, याद रखो। रूबी आज के टाइम पे रूबी ऑन रेल इज वेरी पॉपुलर इन टूडेज टाइम। को उसका एक बेसिक पॉइंट दिया हुआ है, वी कैन वर्क विद दैट। देन दूसरा जो है वो है UFT और QTP ट्यूटोरियल। अब ये देखो ये जो है ना ये आपको कहीं ना कहीं स्टार्ट में जब हम लोग कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं ना, तो आपने सपोज एज अ टेस्टर यू हैव स्टार्टेड वर्किंग एट समवेयर, तो उसके बाद में आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए कहीं ना कहीं ऐसे सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। प्रमोशंस के लिए दिस सॉफ्टवेयर्स आर रिक्वायर्ड, या एज एंड व्हेन अ ट्रेंड चेंजेस, तो उसके साथ में आपको ये न्यू सॉफ्टवेयर जो है वो सीखना पड़ता है। ओके, वी आर ऑलमोस्ट डन विद आवर टाइम। आई विल स्टॉप दिस लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करता है।